Hello, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to discuss with the sample question paper part B. Part A has been released one day before the paper made by me. Today we will discuss its part B. So without any delay, let us start with part B of the same sample question paper that has been created by me. So this is your part B, question number 24. Consider a given series S1. Write a program in Python pandas to create the series S1. Now write a line of code so that the series S1 should appear as changed in the following table. Now here is a series S1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the index values having values 23, 43 and so on up to 89. So you have to write some command so that it should appear like this. That means the index number should be converted to 0, 1, 2, 3, 4 in words and the values are same. So first of all, for creation of this series, we will write the command import pandas as pd, then s1 is equal to pd dot series 23, 43, all values, list of values up to 89. It will create the series. Thereafter series is printed as s1. इसके बाद आप करेंगे क्या, s1 डॉट इंडेक्स. इंडेक्स अभी क्या था, 0 1 2 3 4 5 up to 5. So now index has been changed by writing the index property of series s1 dot index equal to 0 1 2 3 4, like within single quote. So this is another list we have provided for as many values, as many indexes are there. 1 2 3 4 5 6, there are 6 values. So the index number of the series will be changed. If I print s1, I can get this series s1 printed with new index numbers zero, one, two and so on up to 5. So this is the solution of this question. Now this question is from SQL. State two differences between instr and substr functions. instr में आप क्या लिखेंगे, instr सर्च करता है किसी छोटी स्ट्रिंग को विद इन द बिग स्ट्रिंग. बड़ी स्ट्रिंग में छोटी स्ट्रिंग को सर्च करता है और उसका पोजीशन डिस्प्ले करता है, किस पोजीशन पर छोटी स्ट्रिंग वहां पर एग्जिस्ट करती है. So it searches for a small string within a big string given and returns its position as a number. So numeric type उसकी वैल्यू रिटर्न करता है ये in str. For example, in str India is my country, my. तो आप क्या करते हैं, इंडिया इज माई कंट्री में माई सर्च करना चाहते हैं. सो वी विल इट विल रिटर्न द पोजीशन 10 बिकॉज इंडिया इज माई कंट्री में माई कहाँ एग्जिस्ट करता है. लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10. माई जो है वो 10 पर एग्जिस्ट करता है, 10 पर मिला इसको, इसलिए इट इज डिस्प्लेइंग द आउटपुट 10. सब str क्या करता है, एज इट हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू यू सो मेनी टाइम्स, इट चॉप्स आउट एंड रिटर्न सब पार्ट ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग. किसी भी स्ट्रिंग का सब पोर्शन, ये बीच से या कहीं से भी कोई पोर्शन रिटर्न कर सकता है सब स्ट्रिंग. इसे हम मिड से भी यूज करते हैं. मिड फंक्शन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ सब str. वी कैन राइट सब स्ट्रिंग ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो वर्क इन SQL. तो यहाँ पर आप सेलेक्ट सब str, वी आर इंडियंस में चौथे कैरेक्टर से (4, 3) मीन्स फ्रॉम फोर्थ कैरेक्टर वी हैव टू चॉप आउट 3 कैरेक्टर्स. तो यहाँ आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 स्पेस हो गया 4. 4 पर आर का ए आ रहा है, यहाँ से 3 कैरेक्टर अगर मैं गिनूंगा फॉरवर्ड 1 2 3 इंक्लूडिंग ए को ले करके, तो आपका ये ARE यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. ARE इज द रिजल्ट आर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन str एंड सब str फंक्शन. ये 2 मार्क्स का है, इसलिए मैंने 2 पॉइंट लिखा. एक पॉइंट में डिफरेंस आ गया, दूसरे पॉइंट में एग्जाम्पल. इफ इट इज 2 मार्कर यू हैव टू राइट 2 आई मीन फॉर 2 पॉइंट्स. Here state the difference between where and having clause using examples. Where का क्या यूज है, having का क्या यूज है, एग्जाम्पल के साथ आपको देना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इट इज यूज टू सेलेक्ट कमांड और इन
It is used in select command to filter or extract or query out rows based on some conditions implemented on columns. कॉलम के ऊपर आप कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं, फिल्टर कंडीशन. फिल्टर कंडीशन मीन्स कंडीशनल एक्सप्रेशन लाइक सेल ग्रेटर देन 50,000. तो इस तरह से यहाँ पर वेयर में लाइक नेम इज इक्वल टू अमन, लाइक क्लास इज इक्वल टू 12 थे, वेयर में लगाते हैं इस तरह से कंडीशंस. तो उसमें से वो पार्टिकुलर रो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, दैट पार्टिकुलर रो इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड इन द क्वेरी रिजल्ट. सो दिस हैपन्स. तो यहाँ पर हैविंग क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सेलेक्ट कमांड टू फिल्टर और एक्सट्रैक्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन क्रिएटेड बाय ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज में जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स में से भी किसी कंडीशन पर बेस्ड कुछ ग्रुप्स का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, कुछ ग्रुप्स को फिल्टर किया जा सकता है. द फिल्टर्ड ग्रुप विल बी डिस्प्लेड, रेस्ट ऑफ द ग्रुप डिटेल विल बी suppressed, will not appear in the result. तो where is used after from clause in select command. सेलेक्ट कमांड में आप फ्रॉम क्लास के बाद ही वेयर का यूज का इस्तेमाल करेंगे. वैसे वेयर का इस्तेमाल जो है सेलेक्ट में फ्रॉम के बाद होता है, अपडेट कमांड में भी यूज होता है, डिलीट कमांड में भी यूज होता है, वेयर कंडीशनल डिलीशन के लिए, कंडीशनल अपडेशन के लिए. सेलेक्ट कमांड के केस में ये फ्रॉम क्लास के बाद इसका इस्तेमाल होता है. लाइक वी राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ये आपको एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट भी मैंने दे दिया है. ऑल द 2 points आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट फॉर 2 marks. यहाँ पर सेलेक्ट जॉब देन एवीजी ऑफ सेल फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय जॉब. जॉब पर ग्रुपिंग हुई है और इसी में से मैं हैविंग करके जॉब पर फिल्टरिंग कर सकता हूँ. हैविंग जॉब इक्वल टू क्लर्क और जॉब इक्वल टू मैनेजर कैन बी रिटन इज एज हैविंग जॉब इन क्लर्क कॉमा मैनेजर. दैट मीन्स आइदर जॉब इज क्लर्क और जॉब इज मैनेजर. इन दोनों के लिए ग्रुप्स डिस्प्ले होंगे. क्या क्या डिस्प्ले होगा, जॉब डिस्प्ले होगा, उसका करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी उस ग्रुप का डिस्प्ले होगा. क्लर्क और क्लर्क जितने भी हैं उनकी सबकी एवरेज सैलरी. मैनेजर और जितने भी मैनेजर्स हैं उनकी सबकी एवरेज सैलरी. इस तरह से सेल्समैन और उनकी एवरेज सैलरी. लेकिन सेल्समैन डिस्प्ले नहीं होगा और दूसरे जॉब्स डिस्प्ले नहीं होंगे बिकॉज हैविंग के साथ यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि जिसका जॉब क्लर्क हो या मैनेजर हो वही दो ग्रुप्स का डाटा डिस्प्ले होगा. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज. Now, here another question. Consider the real number with a value 4589.7623. Write command in SQL. तो यहाँ पर राउंड फंक्शन के बारे में आपसे पूछा गया है. राउंड इट ऑफ अप टू 2 decimal places. राउंड इट अप टू 3 decimal places before the decimal. 3 places before the decimal. यानी कि आप इसे डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड अप करना है. तो ये सिंपल है. सेलेक्ट राउंड देन द फिगर कॉमा 2. दैट मीन्स ये 2 प्लेस तक आपको राउंड अप करेगा. इसका आंसर क्या आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ. कमांड के साथ आप लिख सकते हैं 4589.76. 76 क्यों आया, क्योंकि उसके बाद ये 2 प्लेस तक हमें रिजल्ट देना. उसके बाद वाला फिगर अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो मैं उसको 76 की बजाय 1 प्लस कर देता, 77 हो जाता. लेकिन ये 5 से लेस है, 2 है, इसलिए दिस विल नॉट बी एडेड, कंसीडर्ड एज 1 टू बी एडेड इन द लेफ्ट फिगर 76. तो आपका 76 एज इट इज रह जाएगा. यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 प्लेस तक आपको राउंड अप करना है. तो 3 प्लेस का मतलब हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ये वंस है, 9 वंस पर है, 8 टेंस पर है, 5 किस पर है, 5 हंड्रेड्स पर है और 4 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पर है. तो 3 प्लेस तक राउंडिंग करनी है डेसिमल से पहले. इसका मतलब 3 प्लेस का मतलब होता है -1, -2, -3. तो आपको 1000 वाले प्लेस पर राउंड अप करना है. यानी कि यहाँ पर आपने लिखा -2. दैट अच्छा 3 प्लेस ये हो गया, 1 2 3, 5 तक राउंड अप करना है इसका मतलब. सो -2 मैंने लिखा हुआ है. 4 प्लेस तक होता तो -3 लिखता मैं. तो here you can see
यहाँ पर 589 है, अगर इसको राउंड अप किया जाएगा तो 550 ऑनवर्ड्स जो है वो 600 में राउंड अप होगा. सो हियर आई कैन राइट 4600 4600. सो दिस इज द आंसर. ओके, क्योंकि 4589 will be round up into 4600. 589 will be round up into 600. डेसिमल के तीसरे प्लेस पर राउंडिंग हुई है. 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा प्लेस हो गया. इसके लिए -2 लिखेंगे. -2 फॉर 100 प्लेस, -1 फॉर 10 प्लेस, -3 फॉर 1000 प्लेस. अगर यहाँ फोर्थ ये इस प्लेस पर राउंड अप करना है, फोर्थ प्लेस पर, तो हमें यहाँ -3 लिखना पड़ेगा. ऑल राइट. So let us go to another question. Consider the following series object S1. ये pandas का question है, series से related है. अमित 97 point, ये आपकी series बनी हुई है. After that, let us see, write a command which will display the name of the student having percentage greater than equal to 60. Greater than equal to 60 परसेंटेज वालों का डाटा आपको डिस्प्ले कराना है. तो हम कंडीशन डालेंगे S1 greater than equal to 60. ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स. उससे पहले S1 ऑफ ट्रू और फॉल्स विद दिस कंडीशन. तो इसमें जो भी ट्रू होगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड. दैट मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, 60.4, 87.5, 97.5, ये डाटा आपका इस कमांड से डिस्प्ले हो जाएगा. ओके. देयर आफ्टर s1.index.name, यहाँ पर कहा गया है कि राइट द कमांड टू नेम ऑफ द इंडेक्स ऑफ द सीरीज एज रिजल्ट. सीरीज का जो इंडेक्स है उसका नाम रिजल्ट रख दिया जाए, ऐसा करना है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s1.index.name इक्वल टू रिजल्ट. सो इसका इंडेक्स का नाम रिजल्ट बन जाएगा. इसको हम लोग अगर देखना चाहते हैं सो लेट अस गो टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमने कहीं बनाया है कि नहीं बनाया है. लेट मी चेक. ये तो दूसरा है. P1, P2, this is another program. Prog1, this is also not the program. We have to make this program separately because it has not been made so far. So अगर मैं यहाँ पर ideally खोल लेता हूँ, and here I have written import pandas as pd, and if series name is s1 is equal to pd dot series within bracket, within this I can write say कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ. 56, हमें टेस्ट ही तो करना है. 90, then square bracket this. So s1 is created. यहाँ पर जो आपका 0 1 2 3 4 5 है, इसको क्या कहा गया है? इसे कहा गया है कि आप इनके नाम जो है नॉमेनक्लेचर कर दीजिए. So let us write s1 dot index index is equal to, I can write say Amit comma Sumit comma Ram comma Sham whatever comma Ravi. इस तरह से मैंने इसे कर दिया. there is some syntax error. Ravi, okay, here should be comma. यहाँ comma होना चाहिए था बीच में. Here I have applied comma. Again invalid syntax. Amit, Sumit, Ram, Sham, Ravi. So here extra bracket, ये parenthesis हटाना पड़ेगा. Now we can see S1 is created like this. अब S1 का आपको इंडेक्स का नाम बदलना है, तो ये जो इंडेक्सेस हैं इसके लिए लेबल लगेगा. S1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम is equal to, I have written result.
So this is changed. If I write S1 now, you can see on the index it is being written result. So this is what was required in this question. So that is what I have written. अब इसमें आप greater than or equal to 60 की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो you can inquire S1 of S1 greater than equal to 60. So like this. So it is printing Ram, Shyam and Ravi 78, 99, 98 is greater than equal to 60. So this was the basically question. Now 28th question. Anmol writes the following commands with respect to table book having fields book number, book name, publisher, cost. Command 1 is written select sum of cost from book. तो सभी बुक्स की कॉस्ट को सम किया गया, टोटल इज 1200, आउटपुट 1200 आया ये आपका। इसके बाद एक कमांड लिखी सेलेक्ट एवीजी ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बुक, तो आउटपुट आपका 300 आया। तो इसका मतलब टोटल जो है अगर एवरेज 300 है और समेशन 1200 है तो उसमें कितनी रो हुई, 1200 divided by 300 gives 4. So there are 4 rows having some values that those values are, I mean if added together it is giving 1200. So it is asking what is the cardinality of the table. Cardinality 4 है क्योंकि उसमें 4 रो होंगी, चारों रोज का टोटल 1200 है, एवरेज 300 है, 300 4 जा 1200. Because of this 1200 divided by 300 equal to 4. And if you want to find out total if no any cost is null, कोई cost इसमें null नहीं है, तो आपको एक command भी लिखनी है, write SQL command to find out number of rows in the table. तो मैं command जो है rows count करने के लिए लिखूंगा select count star from book. So this will count total number of rows within the table book. So ultimately it will give 4. Thereafter 29th question is again from SQL. The string is given corporate floor. Out of this string you have to write such a command using some SQL function to display rate and then display floor. तो रेट डिस्प्ले करने के लिए आप देखें इसमें RAT कहीं बीच में है, तो इसके लिए हम लोग मिड फंक्शन या सब str फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. So I have written what will be the command, select सब str, स्ट्रिंग लिखेंगे कारपोरेट फ्लोर, देन स्ट्रिंग रेट कहाँ से शुरू होती है, काउंट इट 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन से रेट शुरू होता है, तो यहाँ पर मैंने कॉमा 6 लिखा एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द रेट 1 2 3 4, so 4. That means from corporate floor from sixth position 4 characters will be extracted, that is rate will be returned by this command. इसके बाद फ्लोर प्रिंट करना है आपको, यू कैन सी द फ्लोर इज द राइट मोस्ट कैरेक्टर्स, तो इसके लिए हमें लिखना है राइट फंक्शन, सेलेक्ट राइट कारपोरेट फ्लोर कॉमा हाउ मेनी कैरेक्टर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड हैज टू बी चॉप्ड आउट, हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड, यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5, so that is why I am writing comma 5. तो इस स्ट्रिंग में से राइट हैंड साइड से 5 कैरेक्टर ये चॉप आउट करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा, दैट इज फ्लोर. यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रिंग लिखा है कंसीडर द सेम स्ट्रिंग, इट इज ये आपका प्री ऑक्यूपाइड नहीं है बल्कि कॉर्पोरेट फ्लोर है, कॉर्पोरेट फ्लोर. इस स्ट्रिंग में देखें आप राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले, व्हाट इज टू बी डिस्प्लेड, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग OR इन द स्ट्रिंग कॉर्पोरेट फ्लोर. कॉर्पोरेट फ्लोर में आपको ये OR सर्च करना है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ OR हैज टू बी सर्च्ड, although this is second occurrence and this is the third occurrence, we have to search only the first occurrence. इसके लिए हमें instr फंक्शन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि instr फंक्शन always searches for the first occurrence of the small string within the big string. तो यहाँ बड़ा स्ट्रिंग हमारा लिख दिया मैंने, सेलेक्ट instr कॉर्पोरेट फ्लोर, और इसमें OR की सर्चिंग हम कर रहे हैं इस तरह से. सो इट विल रिटर्न यू 1 2 बिकॉज OR इज फाउंड ऑन सेकेंड पोजीशन, तो आपको ये 2 रिटर्न करेगा. सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ लास्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लास्ट 4 कैरेक्टर्स को चॉप आउट करके उसकी लेंथ निकाल करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है. कमांड क्या होगी,
सेलेक्ट, पहले आप राइट साइड से कारपोरेट फ्लोर में से 4 कैरेक्टर चॉप आउट कर लिया, ये इनर वाला पहले सॉल्व करो। तो इसमें से 4 कैरेक्टर निकलेगा राइट साइड से, तो हो जाएगा LOOR, लोर। 4 कैरेक्टर इसकी राइट साइड से निकाल लिया, LOOR। उसकी लेंथ निकाली तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगी लेंथ। इसको सॉल्व करने पर इतना, इट विल रिटर्न 4। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालने पर 4 का, इट विल रिटर्न 2। तो इसमें से आपको ये 2 रिटर्न कर देगा। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। तो इसका अगर मैं आपको आउटपुट लिख के दिखाऊं तो ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा, ये भी सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा, आपको 2 रिटर्न करेगा, बिकॉज OR इज फाउंड ऑन सेकेंड पोजीशन। अगर मैं यहाँ पर इसको हैश के साथ लिख देता हूँ, ऑल्दो in SQL we don't use hash as comment character, we use dash dash in the same line। अगर उसी लाइन में आपको कमेंट लिखनी है तो हम लोग डैश डैश का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी आप जो है कमेंट सेम लाइन में लिखनी है तो आप डैश डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, डैश डैश लगाइए और वहाँ पर आप यू कैन राइट द आंसर। यहाँ पर 2 बार 2 हो गया। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, 30th क्वेश्चन। इसमें DF इज गिवन एज अंडर, ये डेटा फ्रेम आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पॉपुलेशन क्या है, उसमें कितने कितने हॉस्पिटल्स हैं। अब ये आपका डेटा फ्रेम रेडी है। कंसीडर दैट दिस डेटा फ्रेम DF इज ऑलरेडी क्रिएटेड and given to you, so you have to add a new column school to data frame with these values। आपको नया कॉलम स्कूल के नाम से ऐड करना है और इस वैल्यू, इन वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पर आप कमांड लिख सकते हैं DF ऑफ विद इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में स्कूल्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तीनों वैल्यूज दे दी गई। या इसी कमांड को आप लिख सकते हैं एट फंक्शन से, DF डॉट एट कॉलन फॉर ऑल रोज, देन कॉलम इज स्कूल्स, कॉमा लगा करके स्कूल्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज। इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं LOC का यूज करके, DF डॉट LOC कॉलन कॉमा स्कूल्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। और इसे असाइन फंक्शन से आप कर सकते हैं, DF इक्वल टू DF डॉट असाइन। जब तक आप इसे वापस स्टोर नहीं करेंगे वो टेम्पोररी रहेगा, असाइन फंक्शन जो है वो टेम्पोररीली चेंज करता है। यू हैव टू असाइन इट बैक टू द DF। तो DF इक्वल टू DF डॉट असाइन, इसके बाद स्कूल्स इज इक्वल टू देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। सो इंसर्ट से भी इसे किया जा सकता है, DF डॉट इंसर्ट टू कॉमा, यानी सेकेंड इंडेक्स पर आप कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स मीन्स ये आपका 0 है पॉपुलेशन, 1 हॉस्पिटल है, और ये 2 पर आप स्कूल्स ऐड करने जा रहे हैं कॉलम वाइज। अगर देखा जाए तो DF डॉट इंसर्ट 2 एंड देन स्कूल्स, कॉलम का नाम लिखा, कॉमा, देन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डू इट। स्कूल्स आप एक नया कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं। सो DF डॉट एट, ये क्या है, ऐड ए न्यू रो विद द वैल्यूज चेन्नई दिस, चारों कॉलम्स में यहाँ पर चेन्नई के लिए आपको 1 2 3 वैल्यूज ऐड करनी है। स्कूल्स का भी दिया हुआ है यहाँ पर 3 वैल्यूज। सो मैं यहाँ लिखूंगा DF डॉट एट चेन्नई कॉमा, कॉलम लगा दिया, ये कॉलम को इंडिकेट करता है। तो ये सारी वैल्यूज होगी, पहली वैल्यू हो गई, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट वैल्यू फॉर दिस, सेकेंड वैल्यू फॉर दिस, थर्ड वैल्यू फॉर स्कूल्स। इसी चीज को आप LOC से कर सकते हैं, DF डॉट LOC चेन्नई कॉमा कॉलन एंड लिस्ट ऑफ 3 वैल्यूज। So this is how various options have been given, various alternative answers have been given। You can write any answer out of this। फर्स्ट में आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, सेकंड में 2 अल्टरनेटिव आंसर दिया, इसमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। Now question number 31, expand the following terms related to computer network, HTTPS, IMAP, TCP/IP, POP। So इसमें HTTPS को एक्सपेंड करना है, फुल फॉर्म्स लिखने हैं इनके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसके बाद IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल,
then TCP/IP transfer control protocol, internet protocol, POP post office protocol. So this is of 2 marks, half marks each. 32nd question, how is internet affecting one's daily life? Give one example each of positive and negative aspects of the internet. इंटरनेट किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है आपने। तो देखिए आंसर इसका, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स दैट मेनली प्रोवाइड्स वायरलेस इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. About 95% of all information available has been digitized and made accessible via the internet. So it has affected and penetrated the society in the following manner. इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूजिंग ईमेलिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, ईमेलिंग कर सकते हैं, वीडियो चैटिंग कर सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव इम्पैक्ट. नेगेटिव में आपको एक लिखना था, एडिक्शन टू द सोशल नेटवर्क कैन डिसरप्ट एन इंडिविजुअल्स लाइफ. इसका एडिक्ट नहीं होना चाहिए, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली ये अफेक्ट करता है. अगर आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं, सोशल नेटवर्किंग पर आप काम करते रहते हैं, तो नंबर ऑफ थिंग्स इन द लाइफ गेट्स अफेक्टेड. So these are one impacts given positive and negative. You can prepare two impacts about positive and negative impact of the internet on our daily life. आप दो तैयार कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एट लीस्ट. राइट टू मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट. आप जानते हैं जब भी हम इंटरनेट पर काम करते हैं तो व्हाइल वर्किंग ऑन द इंटरनेट वी लीव सम फुट मार्क्स ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ आवर डिटेल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट बैंकिंग, शॉपिंग एंड ऑल. तो वहाँ पर हमारे कुछ न कुछ हमारे बारे में डिटेल छूट जाता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिजिटल फुटप्रिंट्स. तो उस पर हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स ना छूट जाएं, उसके लिए हमें मैनेज करना चाहिए. हाउ कैन वी मैनेज इट? दो मेजर्स यहाँ पर लिखा जा रहा है आपको. डबल चेक प्राइवेसी सेटिंग्स, डोंट ट्रस्ट अनसेफ साइट्स. अनसेफ साइट्स में आप जो है एंट्री ना करें, जिसमें आपको HTTPS ना हो उस पर ना जाएं. HTTP इज नॉट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज नॉट. इसमें जिसमें आपकी साइट के सामने ये लिखा हुआ है HTTP ओनली, वो सिक्योर वेबसाइट नहीं होती है. यहाँ पर जिसमें HTTPS लिखा है वो सिक्योर वेबसाइट होती है. तो आप देख लें कि प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है या वहाँ पर लॉक का सिंबल है कि नहीं है. वेबसाइट एड्रेस, वेब एड्रेस बार में लॉक सिंबल एक आता है, दैट मीन्स ऑल्सो सिक्योर वेबसाइट्स. तो ये चीज़ें आपको प्राइवेसी सेटिंग में अपना जो है डबल चेक रखिए. डबल चेक 2 लेवल की चेकिंग होती है, जिसमें आपको पासवर्ड और आईडी एक तो होता है, और दूसरा कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है. क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें आपको जवाब देना, अप्रोप्रिएट आंसर लिखना होता है. तो 1 लेवल की चेकिंग वो हो गई. सेकेंड लेवल की चेकिंग हो गई, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं. और दूसरा प्रोटेक्शन मेजर है कि क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल पासवर्ड्स. ऑल्दो आई हैव आल्सो रिटन 2 more points. Review your mobile usage, delete unwanted and obsolete temporary files from your device, keep all the softwares up to date. So these are various measures you can observe. Out of it you should write only 2 measures. खाली 2 मार्क्स के लिए 2 मेजर्स लिखने हैं, मैंने 3-4 भी लिख दिया है. तो you can prepare any 2, I mean you can write any 2. 34th question is, consider 2 objects x and y. X is list value and y is series. Both are having the values this. What will be the output of the following 2 statements considering that the above object has been already created? ये आपके पास x एक लिस्ट है, y एक सीरीज है. दोनों ऑब्जेक्ट्स पहले से क्रिएटेड हैं, दोनों में सेम वैल्यूज हैं. अगर मैं लिखता हूँ x+2 तो आपको क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं लिखता हूँ y+2 तो आपको क्या रिटर्न करेगा? चूंकि x एक लिस्ट है तो x में हम जो है +2 करके उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. लिस्ट डज नॉट अलाउ ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन. ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता कि x+2 लिख दिया तो 32 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया, 122 हो गया. दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लिस्ट. रिमेंबर, ये आपको लिस्ट में अलाउ नहीं करता, क्योंकि लिस्ट जो है मिक्स टाइप भी होता है. कई बार ये नंबर है, यहाँ पर नाम आ गया, यहाँ पर कुछ और आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं होता है. यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक एरर आएगा.
और y जो अगर सीरीज है तो सीरीज और डेटा फ्रेम ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशन जो है वो अलाउ करते हैं, इसलिए इसमें अगर आप +2 करेंगे तो 32, 52, 62 एंड 122, दिस इज योर ओरिजिनल सीरीज y, और +2 करने पर यू कैन सी 32, 52, 62, 122 क्रिएट होगा। इसका जस्टिफिकेशन की बात अगर हम करें तो इन द above output list does not allow broadcasting, that is to perform arithmetic operations to each element, so it gives error, while series, data frame and array, they allow broadcasting operation. Therefore each element of the series, there 2 will be added in each element, हर एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा। अगर ये डेटा फ्रेम होता न्यूमेरिक तो उसमें भी 2 ऐड हो जाता, और ये आपका एरे होता तो उसमें भी हर एलिमेंट में 2 ऐड हो जाता है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। Now this is a theory question. What is data protection? What serious issues may occur if the data is left unprotected? Data protection क्या होता है? Data protection addresses the practices, safeguards and binding rules to put place to protect your personal information and ensure that it remains in control while working online. जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपका डेटा सेफ होना चाहिए और आपके कंट्रोल में होना चाहिए, दूसरे के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डेटा प्रोटेक्शन। अगर आप डेटा को अनप्रोटेक्टेड रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अटैक बाय वायरस, वॉर्म्स एंड मैलिशियस कोड्स, targeted by hackers, loss of money, intellectual property at risk. So these attacks may be there, some serious issues are given, so you can go through. Now what do you understand by netiquette? Write any two do's and don'ts of such netiquette. नेटिकेट क्या होता है? एटिकेट ऑन द इंटरनेट। ऑनलाइन जब भी कोई काम करते हैं तो आपका उस समय दूसरों के साथ कैसा एटिकेट होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज नेटिकेट, और वो अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट एटिकेट और कम्युनिकेशन एटिकेट ओवर द इंटरनेट, just like etiquette, a code of polite behavior in society, netiquette is a code of good behavior while working on the internet online. तो ऑनलाइन जब भी काम करें तो हमारा जो है बिहेवियर सोसाइटी के साथ अच्छा होना चाहिए। वी शुड नॉट अब्यूज, वी शुड नॉट स्पैम, वी शुड नॉट hack and all these, any sort of negative thing should not be done to make your image better on the internet. डूज क्या करनी चाहिए हमें? अपने मैसेज को, रीड योर मैसेज और ईमेल्स टू मेक श्योर दैट दे से व्हाट यू इंटेंड व्हाइल राइटिंग ईमेल। कई बार हमारा सेंटेंस जो है, मैं कुछ कहना कुछ चाहता हूँ लेकिन लिख कुछ देता हूँ तो वो गलत ढंग से लोगों को इंटरप्रेट हो जाएगा, so that is not good thing. Remember that you leave a digital footprint, so be careful what you write while you are on internet. So what are you writing? You should be very careful before pressing enter and posting the message, etc., because you know that you are working online and you can leave digital footprints on any site, so that may be harmful on later stage. डोंट्स क्या करना नहीं चाहिए? डोंट रिस्पॉन्ड इंटरनेट ट्रॉलर्स, पर्सनल अटैक्स, उसे रिस्पॉन्ड मत कीजिए। डोंट स्पैम अदर्स और बाय सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। जो आपके उसमें स्पैम ईमेल्स, जंक ईमेल्स आती हैं, जब तक आप उसे नहीं जानते उसे ओपन ना करें, क्लिक ना करें, अटैचमेंट ना खोलें, ऑल दैट, दीज आर द थिंग्स यू शुड अवॉइड। There are many various other things, but it is sufficient. It is 3 marker question. तो यहाँ से आपका 3 मार्कर शुरू हो गया। कहाँ से? 34 सेक्शन नंबर 2 से 3 मार्कर स्टार्ट हो चुका है। 35 3 मार्कर है। 36 क्वेश्चन आपका क्या है? 36 क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट द कोड टू प्लॉट इट। आपका ग्राफ दिया हुआ है, लाइन ग्राफ। इसको प्लॉट करने के लिए इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot_as_plt। दो सीरीज दे दिया, x1 10 20 30, y1 20 40 10। तो ये आपको एक ग्राफ प्लॉट करेगा, plt.plot x1, y1, इस पर लेबल लगा दिया लाइन 1, सो दैट वी कैन पुट द लेजेंड। ये नहीं लिखेंगे तो लेजेंड अपीयर नहीं होगा। इसके बाद दूसरी दो सीरीज x2 और y2 ले लिया दूसरी लाइन के लिए, दो लिस्ट्स, और उसमें मैंने plt.plot कर दिया x2, y2, लेवल लाइन 2 कर दिया। plt.x लेवल, x एक्सिस पर हमने जो है ये टाइटल डाल दिया,
PLT डॉट वाई लेवल, वाई एक्सिस का टाइटल डाल दिया वाई एक्सिस, PLT डॉट टाइटल, दिस इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ, PLT डॉट लेजेंड टू शो द लेजेंड, PLT डॉट शो, दिस विल शो द फिगर। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका ये लाइन 1 लाइन 2 क्या है, वट एवर लेवल यू हैव पुट, लेवल आपने यहाँ पर लाइन 1 डाला है, दूसरे ग्राफ का लेवल आपने लाइन 2 डाला है, और ये आपकी लाइन 1 एक्स एक्सिस पर आपका टाइटल है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर टाइटल है वाई एक्सिस, और ये टाइटल ऑफ द ग्राफ ये आ रहा है, और यहाँ पर आपका लेजेंड शो हो रहा है लाइन 1 लाइन 2। सो दीज आर टू लाइन्स प्लॉटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 40 15, इसमें क्या वैल्यू थी आपकी 10 20, तो यहाँ पर 10 और ये 20, ब्लू वाली लाइन देखें आप 20 40, और ब्लू लाइन पर 20 और ये 40 पर जा रहा है आपका ये वाला पॉइंट। देन नेक्स्ट वन इज 30 30, आप देखें 30 एक्स एक्सिस पर 30 और वाई एक्सिस पर भी 30 है, तो ये बिल्कुल एक्सिस पर आ रहा है, तो इसको ज्वाइन कर दिया गया। सिमिलरली सेकेंड लाइन ऑल्सो। नाउ और में दिया गया इसके, और ड्रॉ फॉलोइंग बार ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द रेटिंग ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रेटिंग रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको एक प्रोग्राम बनाना है। सो इसका बार ग्राफ बनाने के लिए, तो यहाँ एक्स एक्सिस पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं, और वाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं कि ये वैल्यूज रेटिंग ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर गिवन। इट इज़ वेरी सिंपल, इंपोर्ट कर लिया आपने, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, एक्स इक्वल टू सी प्लस प्लस जावा PHP पाइथन, एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए हमने एक पॉपुलरिटी नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी, सी की पॉपुलरिटी 23, सी प्लस प्लस की रैंकिंग 17 है, जावा की इतनी है, PHP की 13 है, पाइथन की ये है। सो PLT डॉट बार एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई के बीच में बार ड्रॉ कर दिया आपने, PLT डॉट शो। तो सिंपली इस पर ना तो कोई ग्राफ का टाइटल दिया गया है, ना एक्स एक्सिस टाइटल दिया गया है, ना वाई एक्सिस टाइटल दिया गया है, लेजेंड की जरूरत नहीं है बिकॉज देयर इज ए सिंगल बार। तो फॉर ए सिंपल बार चार्ट यू कैन राइट द प्रोग्राम लाइक दिस। आपने इंपोर्ट किया, एक्स एक्सिस डिफाइन किया, वाई एक्सिस डिफाइन किया, और PLT डॉट बार फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स नॉट गिवन, PLT डॉट शो कर दिया, आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 37, relation infants is given below. A table is given here named infants, where item code, item, date of purchase, unit price and discount is given. So these are certain items which are being sold to the newly born child, infants, और इनके लिए we have to write the SQL commands. First command you have to write display the highest price of each type of item for coat and frock only. Once here it is written each type of item, that means what is to be done? We have to use group by somewhere. Highest price, that means we will use max function, aggregate function का इस्तेमाल होगा, इसलिए ग्रुप बाई आसानी से हम यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ दोस ग्रुप्स यू हैव टू फिल्टर फॉर द ग्रुप कॉट एंड फ्रॉक्स ओनली। सो लेट अस राइट द कमांड। क्या होगी कमांड? सेलेक्ट, because I have to make the group on items, each type of item, so I will write select item, then max of unit price, thereafter from infants, group by item, having item equal to coat or item equal to frock. So this is the command. You can see select item comma max unit price from infants, group by item, having item equal to coat or item equal to frock. Having item in भी लिख सकते हैं आप, having item in within bracket coat comma frock within single quotes. तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। You can find out the maximum price, I mean highest price of each type of items. Thereafter count the number of items of each type, item type. हर आइटम का जो है आपको मैक्स नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करना है, लाइक कॉट
there are 2 items, baby socks, 2 items, frock, 1 item, like that counting is to be done. So again we have to go for making the group. each item type, item पर आप group बनाएंगे. सेलेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट आइटम, जिस पर ग्रुप बना रहे हैं उसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा काउंट विद इन ब्रैकेट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इन्फेंट्स, देन ग्रुप बाय आइटम. Here this is the command, select item, count star from infants, group by item. So this is your command. Third command is display the average net price of each item of each type of items, where net price is calculated as unit price minus unit price into discount multiplied by 0.01. See, नेट प्राइस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट प्राइस माइनस यूनिट प्राइस इंटू डिस्काउंट 0.01. ठीक है, तो इसका फार्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नेट प्राइस निकाल सकते हैं. तो और क्या करना है, ईच टाइप ऑफ आइटम, दैट मीन्स आइटम पर ग्रुप रहेगा. ओके, ग्रुप बाय आइटम लगेगा. सो सेलेक्ट आइटम, since we are making group on items, so I will write first column as item, select item, average of unit price minus unit price into discount into 0.01, that means unit price into discount upon 100. यूनिट प्राइस इंटू डिस्काउंट अपॉन 100 क्या करेगा, आपका डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा, यूनिट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो नेट प्राइस आएगा. नेट प्राइस का भी हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है. सो आई हैव टेकन आउट एवीजी ऑफ दिस एक्सप्रेशन as average net price from table name group by item. So this is the third command we have to do. Now we move to section number 3 of part B of 5 marker questions. Here write a program in Python pandas to create the following data frame student from a nested list. नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए ये आपको डेटा फ्रेम पहले क्रिएट करना है. देन वी हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. लेट अस सी. तो यहाँ आप डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपने एक LST नेस्टेड लिस्ट तैयार की. LST इक्वल टू लिस्ट विद इन लिस्ट. यू कैन सी अमन 354 400, ऐसे हॉरिजॉन्टल आपको लेना है. ठीक है, आप डिक्शनरी से बनाते थे तो आप ऐसे लेते थे, वर्टिकल लेते थे. ईच कॉलम नेम कॉलन अमन सुमन रवि किशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. देन टर्म 1 कॉलन दिस ऐसा डिक्शनरी में करते थे. अभी जब आप लिस्ट ऑफ लिस्ट से बनाना है तो आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को आप लेंगे. सो आई हैव टेकन अमन 354 400, one list comma another list suman 423 354, this horizontal row, then third row, fourth list within the list. ये बनाने के बाद df डेटा फ्रेम इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम यूज करेंगे, ब्रैकेट में lst इज डिफाइंड हेयर. देन कॉलम्स कैन बी रिटन एज नेम टर्म 1 टर्म 2. कॉलम्स आप डिफाइन कर देंगे नेम टर्म 1 टर्म 2, दीज हेडिंग्स. नाउ प्रिंट df प्रिंट करते ही आपका डेटा फ्रेम इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, द फर्स्ट वन. ओके, नाउ हियर इंडेक्सेस आर 0 1 2 3, जबकि हमें चाहिए इंडेक्स 1 2 3 4. सो व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट, आपने प्रिंट df कर दिया विद द वैल्यूज 0 1 2 3. ओके, 0 1 2 3, ये इंडेक्स आपका 0 1 2 3 है. इट इज 0 1 2 3. ऑलराइट. और अगर आप इसे 1 2 3 करना ही चाहते हैं तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा df डॉट इंडेक्स इक्वल टू सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4, ऐसा आप लिख सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दैट. ऑलराइट. नाउ पहला जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, ऐड मार्क्स ऑफ बोथ द टर्म ऑफ ए स्टूडेंट एंड असाइन टू कॉलम टोटल. टर्म 1 टर्म 2 को ऐड करके 3, दैट मीन्स 354 प्लस 400 करके एक नया कॉलम असाइन करना है टोटल के नाम से. सो हियर हाउ आई कैन डू इट इज, वी हैव टू राइट df ऑफ टोटल इज इक्वल टू df ऑफ टर्म 1 प्लस df ऑफ टर्म 2. सो ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम, I mean 1 2 3 fourth column total will be added.
thereafter display the lowest marks in both term 1 term 2. टर्म 1 और टर्म 2 में लोवेस्ट मार्क्स आपको पता करना है, तो यू विल राइट प्रिंट df डॉट loc कॉलन कॉमा टर्म 1 टर्म 2 डॉट मिन, ये आपका मिनिमम जो है टर्म 1 और टर्म 2 में से निकाल करके आपको दे देगा. दैट मीन्स टर्म 1 का जो मिनिमम मार्क्स है, टर्म 2 का जो मिनिमम मार्क्स है, दैट विल बी डिस्प्लेड. Thereafter you are printing the df to just to verify whether it is happening or not. Last answer was display the data frame. Data frame is displayed by writing print df. तो आप देखें, सबसे पहले आपने जब ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया तो प्रिंट df जो आपका ये प्रिंट df है, इसका रिजल्ट क्या आया, ये आ गया नेम टर्म 1 टर्म 2 3 कॉलम्स along with इंडेक्स नंबर 0 1 2 3. देन लोवेस्ट मार्क्स, इसमें से लोवेस्ट मार्क्स निकालने के लिए आपने क्या किया है, df डॉट loc कॉलन फॉर ऑल रो एंड फॉर दीज कॉलम्स टर्म 1 एंड टर्म 2 मिनिमम वैल्यू. सो वी आर हैविंग टर्म 1 305, टर्म 2 335. देन वी हैव एडेड वन मोर कॉलम नेम्ड टोटल. टोटल आपने यहाँ पर ऐड किया है, df ऑफ टोटल इज इक्वल टू df ऑफ टर्म 1 प्लस df ऑफ टर्म 2. तो ये आपका टोटल आ गया, एंड देयर आफ्टर दिस हैज बीन प्रिंटेड. देन फाइनल डेटा फ्रेम हैज बिकम विद दिस 4 कॉलम्स नेम टर्म 1 टर्म 2 टोटल. तो इस तरह से आपका ये डेटा फ्रेम फाइनली प्रिंट हो गया. यहाँ पर मैंने इंडेक्स चेंज किया है, 0 1 2 3 किया है. अगर आप 1 2 3 4 करना चाहते हैं तो इसे रीनेम करना हो, इंडेक्स को फिर से सेट करना पड़ेगा. यहाँ पर आप लिख सकते हैं df डॉट इंडेक्स विदिन लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4. So it is possible to change the index also. So that's all about this question number 38. This question is of 5 marks. तो ये 3 नंबर तो इसके हैं 1 2 3 के, उसके बाद 2 नंबर आपका डेटा फ्रेम क्रिएशन वगैरह का है. जैसा कि आपने लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है, तो एक नंबर हो गया लिस्ट क्रिएट करने के लिए, एक नंबर हो गया आपका डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 39 बिलोंग्स टू एसक्यूएल अगेन. आपको ये एसक्यूएल में से देना है और ज़्यादातर एसक्यूएल के इनबिल्ट फंक्शंस हैं इसमें पूछे गए. 5 functions have been asked for 5 marks. Display the name of the month of this date. इस डेट का नेम ऑफ मंथ डिफाइन करना है. फंक्शन का नाम मंथ नेम है, सो सेलेक्ट मंथ नेम ऑफ द गिवन डेट 2020-05-12. तो इस तरह से ये आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी होगा, इस केस में मई आपको रिटर्न करेगा MAY. देन सेकेंड क्वेश्चन इज टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द स्ट्रिंग इंडियन. इंडियन में आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कुछ स्पेसेस हैं, इसे रिमूव करने के लिए हमें जो है आर ट्रिम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. 3 फंक्शंस होते हैं स्पेस रिमूव करने के लिए, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम. ट्रिम रिमूव्स द स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेफ्ट साइड से और राइट साइड दोनों से करता है. एल ट्रिम लेफ्ट हैंड साइड से स्पेसेस रिमूव करता है, आर ट्रिम राइट हैंड साइड से करता है. सो हियर वी हैव टू रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी विल बी यूजिंग द कमांड सेलेक्ट आर ट्रिम within inverted commas Indian, then some spaces within this string. So these many spaces will be removed. Only Indian string will be returned. Extra than the right side, I mean trailing spaces को कहते हैं. ट्रेलिंग स्पेसेस को छोड़ करके एग्जैक्ट स्ट्रिंग आपको रिटर्न करेगा. टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड सो ऑन फ्रॉम द करंट डेट. तो इसके लिए फंक्शन है डे नेम, डे नेम ऑफ कर डेट. कर डेट एक फंक्शन है जो करंट डेट रिटर्न करेगा. उसके बाहर हमने डे नेम फंक्शन यूज कर लिया. दैट मीन्स करंट डेट में से डे नेम फंक्शन क्या करेगा, उसका कौन सा दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, व्हाटएवर विल बी डिस्प्लेड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द लास्ट नेम फ्रॉम योर नेम. अपने नेम से लास्ट नेम चॉप करना है. सो सेलेक्ट राइट ऑफ, मेरा नाम सपोज कीजिए ए के पांडे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ आपका सिंगल कोट होना चाहिए, कॉमा 6 क्या है, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर चॉप करना है. so it will chop out Pandey, it will return Pandey.
To compute the exponent of a given number, that is m to the power n, m की पावर n या फर्स्ट नंबर रेज्ड पावर सेकेंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है. So you'll be writing the function POW. Select POW of 4, 3. It will calculate 4 raised power 3, that is 4 into 4 into 4. It will give 64. The same command can be written, I mean this in place of POW we can use POWER, power function also. This will also work in MySQL without any problem. So this will also do the same thing, 4 raised power 3, 64. Now आपको पता है कि ये सेक्शन नंबर जो 3 आप पार्ट बी का कर रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन में आपको चॉइस है, इंटरनल चॉइस, ये और के साथ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39 में. अगेन देयर इज अ टेबल गिवन, आपको एक एम्प्लॉय टेबल EMP दी गई है. आउट ऑफ दिस टेबल यू हैव टू राइट द क्वेरीज, ये सारी क्वेरीज लिखनी है. डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड बोनस, वेयर बोनस इज 15% of the salary. Command will be select ename for employee name, comma 15% of salary means 15 upon 100 multiplied by cell. 15 upon 100 has been converted into decimal, 0.15 into cell, और हेडिंग उसकी बना दी आपने क्वेरी में एज बोनस फ्रॉम EMP. This is just for query, not for, it is not being updated in the table, okay, because it is select command. Select command just query out the information from the table. It does not make any change in the table. So there is no bonus column given in the table. Only bonus is being calculated and shown on the table on the basis of salary. Second command is select ename. Second क्या है? Display the name, salary and the remainder obtained when salary is divided by 25. For that, for name, for the names that begins with S. ऐसे नाम जो S से शुरू हो रहे हैं उसकी सैलरी को 25 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालना है और उसका नेम और सैलरी भी डिस्प्ले करना है, नेम, सैलरी और रिमाइंडर. तो यहाँ देखें आप, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा मॉड फंक्शन का यूज करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए. यहाँ पर मॉड सेल कॉमा 25 फ्रॉम EMP वेयर ई नेम लाइक S%, तो जिसका नाम S से शुरू हो रहा होगा उसके लिए ये इंक्वायरी करेगा ई नेम कॉमा सेल, देन I mean modulus of salary comma 25 will calculate the remainder when salary is divided by 25 for each row. ठीक है, for this condition. Now another command C is display the name and 4 characters from the employee name extracted from 5 right characters onwards in uppercase. राइट साइड से ई नेम में इधर से राइट से 5 कैरेक्टर निकालने हैं आपको. काउंटिंग राइट से करना है लेकिन एक्सट्रैक्शन जो है फॉरवर्ड ही करना है, लेफ्ट टू राइट, काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द नेम. तो जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में आपको कहा जाए कि लास्ट 3 कैरेक्टर से लास्ट से काउंट कीजिए और 5वें कैरेक्टर पर पहुंचिए, वहां से 3 कैरेक्टर आपको रिटर्न करना है. तो इधर से काउंट किया 1 2 3 4 5, आई पर पहुंच गया, यहाँ से 3 कैरेक्टर क्या हुआ, IDE. तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन. सेलेक्ट ई नेम कॉमा अपर भी में भी उसे कन्वर्ट करना है. सब STR ऑफ ई नेम कॉमा -5 ई नेम में से का मतलब क्या हुआ, राइट साइड से गिन लीजिए, -5 पर पहुंच जाइए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ से ऑनवर्ड सारा चॉप करेगा, IDENT पूरा निकालेगा. एनालिस्ट में देखें, अगर यहाँ पर शिवांश में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ए पर आ गए, तो यहाँ से लेकर के राइट साइड का सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट होगा A1, ओके, AVNSH. कुलदीप में 1 2 3 4 5 LD, ये पूरा निकल करके आएगा. ऑल राइट. और यहाँ अगर स्मिथ में देखें 1 2 3 4 5, तो पूरा का पूरा स्मिथ ही निकल करके आएगा. ओके, 1 2 3 4 5 है नहीं इसमें, तो यहाँ भी आपका ये पूरा बीना निकल करके आएगा.
like that. Next, display the day number of the year out of 365 from the hire date of employees. एम्प्लॉय का जो हायर डेट है इसमें से पूरा ये कौन सा दिन है आउट ऑफ 365, पूरे साल का कौन सा दिन है? 18/12/1990, 18 दिसंबर। तो कौन सा दिन है आपको आउट ऑफ 365 ये रिटर्न करेगा। इसके लिए फंक्शन है हमारा डे ऑफ ईयर। सेलेक्ट डे ऑफ ईयर ऑफ हायर डेट फ्रॉम ईएमपी। इसी तरह से डे नंबर ऑफ द मंथ फ्रॉम हायर डेट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हायर डेट में से आपको निकालना है डे नंबर ऑफ द मंथ, महीने का कौन सा दिन है। सो सपोज कीजिए कि यहाँ पर 18/12/1990 है तो उसे 18 रिटर्न कराना है। 8/9/1991 है तो डे हमारा जो है 8th डे ऑफ द मंथ है। सो डे ऑफ मंथ विल रिटर्न, हायर डेट में से आपका डे ऑफ मंथ फंक्शन यूज करेंगे फ्रॉम ईएमपी। सेलेक्ट डे ऑफ मंथ ऑफ हायर डेट फ्रॉम ईएमपी, so it will return month number of the given date, hire date. लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45 मार्क्स का फिर से है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये 5 मार्क्स का था, 5 क्वेरीज थी। यहाँ पर ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। रहाना मेडिको सेंटर हैज सेट अप इट्स न्यू दिल्ली इट्स न्यू सेंटर इन दुबई। It has 4 buildings as shown in the diagram given below. यहाँ पर 4 बिल्डिंग है, दुबई में ये अपना कोई मेडिको सेंटर जो है खोल रहे हैं। सो हेयर अकाउंट बिल्डिंग, रिसर्च लैब बिल्डिंग, पैकेजिंग यूनिट एंड स्टोर, देयर आर 4 बिल्डिंग्स इन ए पार्टिकुलर कैंपस। और इन चारों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंसेस दी गई हैं कि अकाउंट से लेकर रिसर्च लैब तक 55 मीटर, अकाउंट से स्टोर तक 150 मीटर, स्टोर से पैकेजिंग यूनिट तक 160 मीटर, पैकेजिंग यूनिट टू रिसर्च लैब 60 मीटर, अकाउंट्स टू पैकेजिंग यूनिट 125 मीटर, स्टोर टू रिसर्च लैब 180 मीटर। And how many computers are installed in all these 4 buildings are: in account building 25 computers, research lab 100 computers, store 15 computers, packaging unit 60 computers are installed. As a network expert, provide the best possible answer of the following queries. तो कुछ क्वेश्चन है उसके लिए हमें जवाब देना है। Suggest a cable layout of connections between the building. बिल्डिंग में हम कैसे एक दूसरी बिल्डिंग को कनेक्ट करें, केबलिंग कैसे करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ अकाउंट से लेकर के स्टोर तक की डिस्टेंस 150 मीटर, अकाउंट से रिसर्च लैब 55 मीटर, रिसर्च लैब से यहाँ तक 60 मीटर। तो इनको ये जो लेआउट मैंने दिया हुआ इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि ये 60 मीटर है, ये 55 मीटर है, आपके जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे बिकॉज दे आर नियर बाई लेस देन 100 मीटर। और यहाँ एक जगह केवल सिग्नल्स ड्रॉप आउट होंगे, उसमें हम लोग यहाँ रास्ते में रिपीटर लगा लेंगे, या इस बिल्डिंग में आपने रिपीटर या यहाँ पर रिपीटर लगा दिया बीच में, तो वो अपने आप सिग्नल यहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ पहुँच जाएगी। Correct signal strength will reach to store building from accounts if we put a repeater in between this wire. लेआउट 2 क्या हो सकता है? लेआउट 2 ये है आपका पॉसिबल लेआउट पूछ रहा है। अकाउंट्स को रिसर्च से, रिसर्च लैब को पैकेजिंग से कनेक्ट कर दिया और रिसर्च लैब को डायरेक्ट स्टोर से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक प्रकार का दिस इज टाइप ऑफ बस टोपोलॉजी। ये बस बना रहा है, ये बैकबोन से सारी बिल्डिंग्स कनेक्टेड हुए हैं, है ना, एक केबल से सारी बिल्डिंग कनेक्टेड है। और यहाँ पर रिसर्च लैब इज बीइंग कनेक्टेड विद स्टोर, इज बीइंग कनेक्टेड विद अकाउंट्स, इज बीइंग कनेक्टेड विद पैकेजिंग यूनिट। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है 180 मीटर, तो मोर देन 100 मीटर अगर डिस्टेंस है तो वहाँ हम लोग उस पर उस पाथ में रिपीटर डाल सकते हैं सो दैट द सिग्नल कैन रीच टू द डेस्टिनेशन बिल्डिंग आई मीन विद सेम स्ट्रेंथ, विद प्रॉपर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर इस 180 मीटर वाली डिस्टेंस पर कहीं भी बीच में 40-50 मीटर पर आप रिपीटर लगा सकते हैं। तो these are 2 possible layout that I have thought. The rest you can also think any other possible and economical layout. Then question number 3. Suggest the most suitable place that is building to house the server of this organization. इसमें सर्वर कहाँ रखा जाए?
सर्वर ज़्यादातर उस जगह रखा जाता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रिसर्च लैब में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स हैं। मैं सर्वर को अपने यहीं इंस्टॉल करूँगा। यहाँ से इसकी भी डिस्टेंस, और 100 कंप्यूटर्स को तो वो अप्रोप्रिएट सिग्नल्स भेज ही देगा। उसके बाद जो बचे उनकी डिस्टेंस भी कम है, एक में डिस्टेंस ज़्यादा है, वहाँ पर हम रिपीटर लगा देंगे। सो दैट इज़ वाई द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द रिसर्च लैब बिल्डिंग. Okay. Since research lab is having maximum number of computers, so installing the server in this building will reduce the network traffic. तो network traffic भी आपका इन cables पर कम रहेगा इसकी वजह से. Another question is suggest the placement of the following device with justification. repeater मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है. दो जगह मैंने इस लेआउट में रिसर्च और लैब स्टोर के बीच में लगा सकते हो, इस लेआउट में अकाउंट और स्टोर के बीच में लगा सकते हो. सिंस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग इज मोर देन 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा हो तो स्ट्रेंथ डाउन होने लगती है, इसलिए यहाँ पर रिपीटर लगाया जा सकता है. हब या स्विच आप कहाँ लगाएंगे? यहाँ भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, इसमें इस लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं. हियर ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर. सो हब या स्विच की हर जगह ज़रूरत पड़ती है. आपके पास जैसी कॉस्ट हो, क्योंकि हब ज़्यादा कॉस्टली होता है, स्विच ज़्यादा कॉस्टली होता है हब से, तो आपको स्विच लगाना है स्विच लगा सकते हैं, हब लगाना है हब लगा सकते हैं इन दोनों जगहों पर. और यहाँ भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, हर बिल्डिंग में आपको हब या स्विच लगाना पड़ेगा टू कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दैट बिल्डिंग. ओके, यहाँ भी सेम केस. देन in layout 1, repeater should be installed between account building and store due to distance is more than 100 meter for better communication. Similarly, in layout 2, repeaters can be installed between research lab and store. ये मैंने आपको बता दिया. Hub or switch should be installed in each of the building to interconnect computers. Okay. Then another question is, fifth question, fourth question. Suggest the system hardware or software to prevent unauthorized access to or from the network. नेटवर्क में unauthorized access को बचने के लिए we have to install firewall. So firewall may be in the form of hardware or software. Fifth question is, the company is planning to link its head office situated in New Delhi with the offices in Dubai. Suggest a way to connect it economically. तो इतनी दूर की डिस्टेंस आपकी है न्यू दिल्ली से आपका दुबई, माइट बी मोर देन 1500 किलोमीटर. तो आप वहाँ उसके लिए सैटेलाइट का यूज़ करें. सैटेलाइट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल फॉर दिस पर्पस. Satellite for such long distances is better and economic means of communication. Therefore, we should go for satellite as a communication channel between Dubai and India. So these are the 5 questions based on your networking chapter. इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं इस तरह से. So you have seen that in part B we have, how we have solved these questions, what is the way and how we have thought about the answers. So यहीं पर आज मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ, वीडियो को एंड करता हूँ. बहुत लंबी वीडियो बन गई है. So thank you very much for watching. Thank you.